So first of all, very good morning to all of you. Okay, we will start today's lecture. Today is the second lecture of your standardization of ASU. First slide, we will revise the what we have studied in last lecture. So last lecture we have seen about what is exactly standardization, meaning of the standardization. Okay, then what is standardization in ASU, the standardization in the concept of ASU, then need of the standardization ASU, what is the importance of standardization in ASU system. This detail we are already studied in previous lecture. Today's lecture we will see the what are the steps involved in the standardization. So let's start with the first step. So basically standardization it involves, that is according to WHO, it is a process involving the physico-chemical evaluation of the crude drug, which is already we have studied in last lecture. In standardization, we study the physico-chemical properties of the crude drug. Apart from that, safety, efficacy and stability assessment of the finished product. After the raw material study, we prepare the finished product, then we study safety, stability. We will see everything is in detail. It is a in short brief, that is what is exactly involved in standardization. So physicochemical evaluation, safety, efficacy and stability assessment of the finished product. Apart from documentation of the safety and risk based on the experience and providing the product information to the consumers. मतलब whatever we are studied, उसका एक proper format होके we have to assure the consumer that your product is safe for them to use. So standardization is basically divided into the 4 steps. Okay? So there are total 4 steps in standardization, that is phase 1, phase 2, phase 3 and phase 4. Okay? We will go to the next slide. So what is exactly in phase 1? Okay? It is started from the phase 1. So phase 1 there are total 5 sections, that is survey, authentication, efficacy testing, safety testing and chemical testing. Okay? First we will start with the survey. So what exactly involve, or what are we things we do in a survey? So it involves the ethnobotanical and literature survey of the plant use, part of the plant use. One second. Okay. So it involves the ethnobotanical and literature survey of the plant use, part of the plant use methods of the preparation, active against which disease and other variation and subspecies uses. Okay. So we can take the one example, that is Adulsa syrup. Okay. With the help of the Adulsa syrup, we will see the how the standardization procedure and steps are involved. So example, ले लो कि Adulsa syrup है. So suppose there are so many Adulsa syrup already present in the market, and you want to launch your new product with the Adulsa syrup. So definitely market में already products है, तो अगर तुम लोग को तुम्हारा खुद का product होना चाहिए, तो something should be new in that product. So what we decided कि Adulsa is basically used for the cough syrup, but majorly as per your literature, मतलब जो कुछ भी literature available रहेगा, it says that कि Adulsa is used for dry cough only. Okay, so if you have the wet cough, then Adulsa is may not be give the that much effect. So we, and suppose imagine karo ki we have a one team in a company. I am your manager and you are my working team in a R&D center. So we decided ki what can we do extra in that particular Adulsa syrup. So we decided ki what are the using for the wet cup. So if you see the literature, the wet cup generally they are using for Ayurveda, as per Ayurveda or Siddha. Generally they are using ginger or sunta. It is used for wet cup. Then haldi is most probably used for wet cup and other things. So we decided to prepare a combination product along with the adulsa, that is the adulsa, ginger, tulsi, and we can say we can take a turmeric. Why we are taking tulsi? Because tulsi having the maximum ayurvedic property, antibacterial and antifungal activity. So what is generally cough? Cough or is nothing but it is a bacterial or fungal infection sometimes. Okay, maximally it is a virus or bacterial infection in your throat. So it is tulsi having the good antibacterial activity. Turmeric is also generally used for antibacterial activity, and it is used to remove the poisonous substance in your or foreign matters present in your body to remove. So generally adulsa is used for dry cough. So ginger is used for wet cough. And what generally what मतलब in cough generally क्या होता है, इन्फेक्शन ही होता है बैक्टीरियल और फंगल. सो अलॉन्ग विद दैट अगर हम लोग तुलसी वगैरह कुछ लेते हैं तो वो भी इफेक्टिव रहेगा. एंड एक्स्ट्रा अगर बॉडी में कुछ डिपॉजिट होता है ड्रग के हिसाब से, तो उसको रिमूव करने के लिए हल्दी भी यूज होगा. अब ये सारी चीजें हम लोग ने कहाँ से देखी? बाय द
सर्वे मतलब लिटरेचर सर्वे करो या फिर जो कुछ भी हम लोग को सर्वे करके हम लोग ने डिसाइड किया कि बहुत सारी चीजें, नॉट ओनली 4 प्लांट डिसाइड करो कि हम लोग ने 10-12 प्लांट डिसाइड किए जो कफ सिरप पे मेजरली ट्रेडिशनली यूज होते हैं, उसमें से हम लोग ने ये वॉइस 4 पार्ट यूज किया फॉर आवर प्रोडक्ट प्रोडक्शन। ठीक है, अभी सर्वे कहाँ पे करना है, दैट इज ऑल्सो मेन थिंग कि एग्जैक्टली वेयर वी डू द सर्वे। just for internal suffering is enough for the survey? Definitely no. So there is a specific methods and literature available in your history. So where we did the survey. Hmm, small one for next slide. I think there is some mistake. Okay. Okay. So where to survey? So Ayurvedic Pharmacopoeia of India, it is available. Okay. Then Indian Herbal Pharmacopoeia, WHO guidelines on traditional medicines, Ayush and literature survey. So Ayurvedic Pharmacopoeia of India, it is a specially made generally for what are the Ayurvedic plants, product, whatever we are preparing, whatever in your history. So they are combine all the product and prepare as per your Indian Pharmacopoeia, जो normally Pharmacopoeia का अपने API के लिए बुक होता है, same way they have prepared the Ayurvedic Pharmacopoeia in which they have the monographs of the all the Ayurvedic plant and their products, etc. Indian Herbal Pharmacopoeia, which contain all the Indian herbal information. That means whatever herbs are available in India in basis. So what are the herbs? What are their Latin name? What are their scientific name? What part generally we are using? What are the uses of this particular part? What are the therapeutic effects? All the information which is available in Indian Pharmacopoeia and where we can use this particular plant. WHO guidelines on traditional medicine, that means not only the India, apart from India there are so many traditional medicines are available. Like Chinese medicines है, then European medicines है, there are lots of medicines which globally they are called as a complementary medicine. ठीक है, so वो सारे medicines के लिए भी उनकी भी कुछ guidelines है which is available on WHO guidelines on traditional medicine. It is a one kind of PDF or bunch of practices or guidelines where we can get the detailed information which we can use for the reference for to analyze and we can say to make the more beneficial product because generation to generation बहुत सारे product चलते आ रहे हैं लेकिन commercially आपको अगर product pharmaceutical product को launch करना है तो definitely वो उतना ही effective होना चाहिए जितने कि तुम लोग के modern medicines available है. ठीक है, Ayush is nothing but the you better know the Ayush, that is your Indian department for your traditional medicines. अगर आप लोग ने कभी आयुष का होम पेज किया है मतलब देखा विजिट किया है तो उसके ऊपर लॉट्स ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन जो कि वो लोग सर्वे करते हैं या फिर जो भी क्या बोलते हैं हम लोग न्यू एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ पेपर पब्लिश ऑन आयुष. अपार्ट फ्रॉम देयर लॉट्स ऑफ गाइडलाइंस ऑन हाउ टू प्रिपेयर द प्रोडक्ट. अगर तुम लोग को आयुर्वेदिक सेक्शन में कोई कंपनी लॉन्च करनी है, कोई प्रोडक्ट प्रिपरेशन करना है, कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, रिसर्च करना है तो देयर आर लॉट्स ऑफ फेलोशिप एंड फ्रीशिप, ऐसे बहुत सारी चीजें आयुष पेज पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जहां से हम लोग को न्यू प्रोडक्ट प्रिपरेशन का इंफॉर्मेशन मिल सकता है. यस, लिटरेचर सर्वे जैसे मैंने बोला अभी रिसेंटली देयर आर लॉट्स ऑफ बिकॉज आयुर्वेदा में बहुत सारा रिसर्च हो चुका है तो वहां से भी हम लोग को काफी इंफॉर्मेशन मिल सकता है कि हाउ वी कैन प्रिपेयर और मॉडिफाई आवर प्रोडक्ट. सो फर्स्ट थिंग क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए अगर कोई भी प्रोडक्ट प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले उसका लिटरेचर सर्वे करना है कि एग्जैक्टली उस टाइप के कौन से प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है. ठीक है, उनके बेनिफिट्स क्या है या फिर उनके ड्रॉबैक्स क्या है, उसके अंदर हम लोग क्या एडिशनल कर सकते हैं, ये सारी चीजें फर्स्ट हम लोग को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है. अंडरस्टूड? ठीक है, anybody is having any doubt you can raise your hand or you can type in a chat box or shall I continue for the next slide? Okay, so we will move for the next slide. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज ऑथेंटिकेशन. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सी फ्रॉम द सर्वे से अभी हम लोग ने एग्जांपल हम लोग ने लिया था आयुर्वेदिक सॉरी अडुलसा सिरप. तो सर्वे से हम लोग को पता चला कि ये सारे मतलब बहुत सारे प्लांट करने के बाद हम लोग ने रिसर्च किया कि वी विल प्रिपेयर द कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन. In combination formulation we decided to create a 4 plants, that is your adulsa, that is major content रहेगा. उसके बाद small amount of your tulsi, small amount of your haldi and ginger. ठीक है, that is a additional to help to reduce the syrup या sorry cough and other
something happening in your body during the when you are having the cough. ठीक है, ओके. सो ऑथेंटिकेशन कैसे कि हम लोग ने प्लांट मटेरियल यूज किया, लेकिन हम लोग को जो भी ड्राई प्लांट हम लोग लेते हैं, एक तो सबसे पहले होता है कि खुद खेती करो और खुद के प्लांट खुद ग्रो करो एंड खुद कलेक्शन करो. बट मे बी एवरी टाइम और रिसर्च टाइम पे इट इज नॉट पॉसिबल. अगर तुम लोग को कोई कमर्शियलाइज प्रोडक्ट करना है तो उसके लिए तुम लोग खुद की खेती करो तो अलग से बात है. लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंगली तुम लोग जस्ट सोच रहे हो कि ये प्रोडक्ट बनाना है, तो तभी स्टार्टिंग में हम लोग खेती करने नहीं जाएंगे. सो फर्स्ट टाइम वी विल कलेक्ट द प्लांट मटेरियल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट प्लांट मटेरियल सच में इफेक्टिव है, प्रोडक्ट प्रॉपरली बन रहा है या नहीं. तो इसके लिए हम लोग को प्लांट मटेरियल सबसे पहले कलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, सो अभी हम लोग कलेक्ट कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे ऑथेंटिकेट प्रॉपर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है. सो डेफिनेटली हम लोग अडुलसा सिरप के लिए जो भी तुम लोग के ड्राई लीव्स रहेंगे क्रश में पाउडर फॉर्म में, वो पाउडर कलेक्ट करेंगे. तुलसी का पाउडर कलेक्ट करेंगे. जिंजर का, ड्राई जिंजर का पाउडर इट सुन कलेक्ट करेंगे. एंड मैंने क्या बोला था, टर्मरिक और वी कैन से ब्लैक पेपर भी ले सकते हैं. ठीक है, तो इमेजिन करो कि ये 4 प्लांट का हम लोग ने मटेरियल लिया. अभी उसके अंदर कुछ मिलावट है या नहीं वो पता करना बहुत जरूरी है. जैसे फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि ऑथेंटिकेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज सेम टाइप ऑफ का मटेरियल अगर हम लोग ने मिक्स किया है तो उससे तुम लोग के एक्चुअली प्रोडक्ट का जो थेरापेटिक वैल्यू होता है, एफिकेसी होता है, वो कहीं ना कहीं पे तो रिड्यूस होता है. तो ऑथेंटिकेशन करना है, दैट इज राइट, लेकिन हाउ टू ऑथेंटिकेट, तुम लोग को पता कैसे चलेगा कि तुम लोग का प्रोडक्ट के अंदर कुछ मिलावट है या नहीं. So there are few क्या बोलते हैं chemical और microscopic examination, that is nothing but the examine the micromorphology, microscopic characteristic to identify the potential identity. So micromorphology क्या होती है, जिसके अंदर तुम लोग जो भी मटेरियल कलेक्ट करते हैं तो उसका कलर होता है, उसका टेक्सचर होता है, उसका कंसिस्टेंसी होती है. जैसे कि हल्दी के पाउडर का एक कलर होता है, उसका एक कंसिस्टेंसी होता है, जिससे हम लोग को पता चल सकता है कि ये वही प्लांट है. या फिर सेम अडुलसा के पत्ते थोड़े से लीव्स थोड़े से लॉन्ग होते हैं तो उसके अंदर फाइबरस मटेरियल ज्यादा कंटेंट होता है. ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिससे हम लोग को पता चलता है. माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन ये तुम लोग ने फर्स्ट ईयर में तुम लोग को प्रैक्टिकल में था, हाउ टू डू द माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन फॉर द प्लांट मटेरियल. सो इट इज वेरी वेल नोन कि जब तुम लोग किसी पाउडर का माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन देते हैं तो दे हैव द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि स्टार्च ग्रैन्यूल्स होती है, ट्राइकोम्स होता है, झाइलोम्स होते हैं, झाइलोम से अलग अलग टाइप्स होते हैं. ठीक है, स्पिंडल स्पाइरल्स या फिर स्ट्रेट झाइलोम वगैरह. तो उसके हिसाब से उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज होता है कि ये पर्टिकुलर प्लांट में स्टार्च ग्रैन्यूल 80% से ज्यादा होते हैं. तो अगर तुम लोग देखते हो तुम लोग को 80% से ज्यादा ग्रैन्यूल मिलते हैं, मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि यही सेम प्लांट के प्रेजेंट है. ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग को प्लांट का माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग स्टडी करते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं कि प्लांट मटेरियल सेम है या नहीं. अपार्ट फ्रॉम दिस द बेस्ट टेक्निक विच इज वी आर यूजिंग दैट इज नथिंग बट द TLC और HPTLC, वेयर along with the standard we are running the sample. Suppose you are newly analyze the product और न्यू कोई सैंपल कलेक्ट किया है एंड तुम लोग के पास स्टैंडर्ड्स अवेलेबल नहीं है, तो सिंपली जस्ट रन योर सैंपल एंड उसके स्टैंडर्ड्स के वैल्यू और RF वैल्यू जो भी है वो तुम लोग को कहाँ पे मिलेंगे, हर्बल फार्माकोपिया एंड इंडियन आयुर्वेदिक फार्माकोपिया, जिसके मोनोग्राफ्स रहेंगे. उस मोनोग्राफ में HPTLC एंड तुम लोग के TLC के स्टैंडर्ड के फोटोग्राफ्स होते हैं अलॉन्ग विथ योर RF वैल्यू. ठीक है, तो जिसके हिसाब से तो अगर वो प्लांट के अंदर जो भी तुम लोग के मार्कर पीक्स रहेंगे, उस मार्कर पीक्स या फिर मार्कर बैंड रहेंगे, वो मैच एग्जैक्टली तुम्हारे प्लांट के बैंड के साथ मैच होते हैं. मतलब से उससे एक पैटर्न रहेगा, देयर आर 8 बैंड्स, जिसके अंदर ऑरेंज कलर के 3 बैंड दिख रहे हैं, येलो कलर के 2 बैंड दिख रहे हैं, उसका RF फैक्टर रहेगा. वो सेम पैटर्न में अगर तुम्हारा सैंपल रन हो रहा है, सेम बैंड तुम लोग को दिख रहे हैं, जिसकी वजह से तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो भी रॉ मटेरियल हम लोग ने कलेक्ट किया है वो प्रॉपर प्लांट है. ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे फर्दर जाएंगे. ठीक है, स्टार्टिंग में क्या किया, सर्वे किया, उसके बाद जो भी रॉ मटेरियल कलेक्ट किया वो रॉ मटेरियल ऑथेंटिकेट है या नहीं वो हम लोग ने चेक किया. ठीक है, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. आगे करें, दैट इज नथिंग बट द रेफरेंस फॉर ऑथेंटिकेशन. ये जो मैंने बोला कि कहाँ पे तुम लोग देखोगे ऑथेंटिकेशन करना है, दैट इज नथिंग बट द इंडियन हर्बल फार्माकोपिया, वेयर ईच हर्ब क्लियरली मेंशन विद द बोटैनिकल लैटिन नेम, फैमिली एंड कॉमन नेम. मतलब उस प्लांट का पूरा इंफॉर्मेशन तुम लोग को अवेलेबल है. Dhanashri has raised your hand. Dhanashri, you can unmute yourself and you can ask the doubt. Ma'am, does some another minerals or something is present in soil affect on the phytoconstituent of herb?
हाँ, yeah, definitely, but we will see it later कि what are the, suppose is any heavy metals or other parties present in your plant, so how to remove we will see the later. First thing we will see the कि जो भी plant material collect किया है वो same है, वैसा ना हो कि हम लोग ने अडुलसा का plant मांगा हो, किसी ने हम लोग को मैंगो ट्री का पाउडर दिया है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या होता है कि जो प्लांट मटेरियल कलेक्ट किया है वही मिला या नहीं वो पहले ऑथेंटिकेट करना है। उसके अंदर कुछ मिलावट है, मतलब उसके लिए हम लोग ऑथेंटिकेशन के कुछ हेवी मेटल्स प्रेजेंट है, कुछ और है, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे, वो फर्दर स्लाइड्स में है। लेकिन सबसे पहले एम क्या है कि सेम चीज मिली हम लोग ने कलेक्ट किया नहीं वो देखना है। अगर उसके अंदर कुछ हेवी मेटल्स प्रेजेंट है तो उसको रिमूव कैसे करना है या फिर उसको रिजेक्ट कैसे करना है वो हम लोग आगे जाके देखेंगे, ठीक है। सो कैन आई मूव Okay, फॉर ma'am. द नेक्स्ट स्लाइड? ओके। Yes, तो ma'am. दिस इज द रेफरेंस फॉर योर ऑथेंटिकेशन कि कहाँ पे एग्जैक्टली देखना है। अभी सेकंड पॉइंट देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट यूज, इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन एंड मतलब कि जो भी प्लांट हम लोग को यूज करना है वो एग्जैक्टली कहाँ से कलेक्ट करना है। जैसे हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था जो हल्दी का एग्जाम्पल था कि केरला वाला जो सैंपल था उसके अंदर मैक्सिमम तुम लोग के फाइटोकेमिकल मिलते हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग को हल्दी यूज करने तो अगर मैंने 4 जगह से प्लांट कलेक्ट, मतलब जो भी मैंने पहले उसका लिटरेचर सर्वे किया उसके हिसाब से मुझे जो भी प्लांट कलेक्ट करना है वो केरला वाला सैंपल होना चाहिए जिसके अंदर बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट होगी, ठीक है। सेम वे whenever the applicable common substitution and adult डिफरेंशिएशन, यहाँ पे क्या है कॉमन सब्सटीट्यूशन मीन्स एग्जैक्टली व्हाट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कुछ प्लांट्स होते हैं जिसका प्रोडक्शन बहुत कम होता है या फिर वो प्लांट के सारे मटेरियल्स एवरी टाइम मतलब ऑल सीजन अवेलेबल नहीं होते। सो ऐसे टाइम पे अगर तुम लोग को प्रोडक्शन करना है एंड अगर वो प्लांट का वो पर्टिकुलर प्लांट पार्ट नहीं मिल रहा है तो क्या हम लोग मतलब इमेजिन करो कि तुम लोग कोई प्रोडक्ट प्रिपेयर ऑलरेडी यू आर इन अ मार्केट एंड तुम लोग प्रोडक्शन में है, मतलब मैं अरुणा सिरप ऑलरेडी बन चुका है तुम लोग का एंड अभी तुम लोग को नेक्स्ट बैच प्रोसेस करना है, लेकिन तुम लोग का ऐसे हो रहा है कि उसके अंदर तुम लोग ने एक पर्टिकुलर की इमेजिन करो कि अपार्ट फ्रॉम दैट तुम लोग ने कुछ और एक प्लांट उसमें यूज किया है, केसर लेते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर रेफरेंस या फिर जस्ट फॉर इमेजिन जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि हम लोग ने केसर वो सिरप में डाला है, लेकिन इमेजिन करो कि मानसून केसर सिर्फ मानसून सीजन में ही अच्छा क्वालिटी का मिलता है। सो अगर तुम लोग समर सेकेशन में जाओगे तो उस टाइम पे तुम लोग का उतना अच्छा क्वालिटी का केसर नहीं मिलता बिकॉज उसका प्रोडक्शन ओनली मानसून सीजन में ही होता है। तो समर सीजन में जो भी होता है वो स्टोर कंडीशन वाला केसर तुम लोग को अवेलेबल मिलता है एंड तुम लोग को स्पेशली फ्रेश प्लांट ही चाहिए। तो अवेलेबल नहीं तो क्या तुम सब्सटीट्यूशन में ड्राई प्लांट यूज कर सकते हो। अगर केसर के वो केसर में जनरली क्या होता है वो फ्लावर के एंथर्स यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर वो अवेलेबल नहीं है एंड हम लोग को अभी नेक्स्ट बैच के लिए प्रोसेस करना है तो उसके सब्सटीट्यूशन में तुम लोग कौन सी चीज यूज कर सकते हो। कैन वी यूज द वो सेम प्लांट के पेटल्स यूज कर सकते हैं क्या, क्योंकि उस प्लांट हर एक प्लांट का उसके हम लोग को पता है कि उसके फाइटोकेमिकल का कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर होता है लेकिन किसी पार्ट में ज्यादा होता है किस प्लांट में कम होता है। आज से तुम लोग को लास्ट ईयर में एक प्रैक्टिकल था जिसमें हम लोग ने स्टडी किया था कि सेम प्लांट का होल प्लांट उसके साथ हम लोग ने उसके साथ यूज किया था लीव्स ऑफ द प्लांट, रूट ऑफ द प्लांट एंड अलग अलग पार्ट यूज किए थे एंड उसके अंदर हम लोग ने उसके टीएलसी के बैंड देखे थे तो ऑलमोस्ट 10 में से मिनिमम 5 to 6 बैंड होते हैं वो जो मैच होते हैं। मतलब क्या कि उस पर्टिकुलर प्लांट के फाइटोकेमिकल्स स्पेसिफिक पार्ट में ज्यादा कंटेंट होते हैं लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं तो अगर एंथर अवेलेबल है तो उस पर्टिकुलर फ्लावर्स के लीव्स या पेटल्स हम लोग कैन वी यूज बिकॉज उसके अंदर भी उस सम अमाउंट ऑफ फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट रहेगा। लेकिन क्या रहेगा कि सपोज मतलब एंथर के अंदर वो फाइटोकेमिकल्स 80% है तो पेटल में वो 40% है तो डेफिनेटली जो भी क्वांटिटी यूज करना है वो ऑलमोस्ट डबल क्वांटिटी यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं या नहीं, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। So definitely, as per Indian and herbal pharmacopoeia, if you are producing any preparations, you can use the substitution. लेकिन what kind of substitution we can use, ये भी herbal and Indian pharmacopoeia में mention किया है कि अगर ये part particular available नहीं है तो उसके substitution में तुम लोग को कौन सा part use करना है, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ अडल्ट्रेशन है जैसे उसने बोला कि अगर हेवी मेटल्स है तो हेवी मेटल्स कैसे फाइंड आउट करने हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उसका एक पर्टिकुलर लिमिट्स रहेगा, अगर उस लिमिट से वो क्वांटिटी ज्यादा है तो डेफिनेटली वो रॉ मटेरियल हम लोग को रिजेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज एक पर्टिकुलर लिमिट से अगर उसके अंदर फॉरिजिन मैटर एक्स्ट्रा क्वांटिटी में अवेलेबल है तो डेफिनेटली इट विल इफेक्ट ऑन योर प्रोडक्ट। सो क्या क्या सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, अगर उसके अंदर अडल्ट्रेंट प्रेजेंट है तो कौन सा अडल्ट्रेंट प्रेजेंट है, कितने सॉरी
कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा प्रेजेंट है, डेफिनेटली यू कैन नॉट यूज दैट पर्टिकुलर रॉ मटेरियल। ठीक है, ये सारी चीजें देखने के लिए, रेफरेंस के लिए तुम लोग को फार्माकोपिया में प्लांट के कलर फोटोग्राफ्स, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक पार्ट वो कैसे दिखते हैं, मतलब अगर उसके अंदर ट्राइक्रोम प्रेजेंट है तो वो ट्राइक्रोम का शेप क्या है वो हम लोग को देखना है। अपार्ट फ्रॉम ट्राइकोम का शेप, जैसे मैंने बोला कि उसके अंदर अगर तुम लोग को और कुछ चीजें देखनी है, जैसे कि झाइलोम देखना है, तो झाइलोम का उसका एग्जैक्टली शेप क्या है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कलर फोटोग्राफ्स तुम लोग को फार्माकोपिया में अवेलेबल होंगे, जहां से रेफर करके तुम लोग प्लांट का ऑथेंटिकेशन एग्जैक्टली चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट टेस्टिंग, तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा, सबसे पहले सर्वे किया, उसके बाद ऑथेंटिकेशन किया, जो भी मटेरियल हम लोग प्रिपरेशन प्रोडक्शन के लिए यूज करें क्या वो मटेरियल ऑथेंटिकेट है, क्या उसका एक्सट्रैक्शन हम लोग फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज हम लोग क्या देख रहे हैं, वी आर एक्चुअली चेकिंग द व्हाट इज एग्जैक्टली स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसीजर, जिसके अंदर 4 फेजेस है। 4 फेजेस में से हम लोग वी आर मूविंग द फेज 1। फेज 1 के अंदर हम लोग ने 4 या 5 पॉइंट देखे थे, जिसके अंदर सबसे पहले था सर्वे, नेक्स्ट देखा था ऑथेंटिकेशन, थर्ड पॉइंट है दैट इज नथिंग बट द एफिकेसी टेस्टिंग। सो व्हाट इज एग्जैक्टली द efficacy testing? The efficacy of the plant material is tested in animal model, keeping the form and route of medicine similar to as used in a studied journal medicine. मतलब क्या कि अभी हम लोग ने डिसाइड किया, हम लोग ने लिटरेचर सर्वे से फाइंड आउट किया कि अडुल्सा इज मोर, अडुल्सा एक्सट्रैक्ट या फिर पुराने पुराने बहुत पुराने जमाने में अडुल्सा के लीव्स कफ के लिए यूज करते थे। वैसे ही पुराने जमाने में तुलसी यूज करते थे या फिर जिंजर यूज करता था, ये हम लोग ने लिटरेचर सर्वे में जस्ट यूज किया है। लेकिन सच में वो इफेक्टिव है या नहीं, एग्जैक्टली कितना अमाउंट लेना है वो देखने के लिए जो भी मतलब जिस फॉर्म में, जैसे कि हम लोग इमेजिन करो कि वी आर यूजिंग एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट फॉर योर सिरप प्रिपरेशन, सो वी वांट टू टेस्ट द एफिकेसी ऑफ द एक्सट्रैक्ट ऑन योर एनिमल मॉडल। रूट सेम होना चाहिए, जैसे कि अगर हम लोग को सिरप थ्रूली माउथ से लेने वाले हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उस एनिमल को माउथ से पहले वो सारी चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे एंड उसके बाद उसका इफेक्ट हम लोग देखेंगे। इट इज क्लिनिकल ट्रायल में जैसे हम लोग देखते हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल जैसे हम लोग कहते हैं कि एनिमल के हम लोग ऊपर पहले देखते हैं कि वो पर्टिकुलर प्लांट इफेक्टिव है या नहीं, उसके बाद ही हम लोग पता, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम लोग ने सिर्फ लिटरेचर सर्वे किया है, वो प्रोडक्ट हम लोग ने प्रिपेयर किया, उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट में प्रिपेयर करने के बाद पता चला कि प्रोडक्ट फेल जा रहा है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ पे सारा है कहाँ पे, फिर पता चलेगा कि जो रॉ मटेरियल हम लोग ने यूज किया है, लिटरेचर सर्वे में दिया है कि आयुर्वेदा का मतलब अडुल्सा सिरप कफ सिरप के लिए यूज है, लेकिन जो अडुल्सा हम लोग ने लिया है वो अडुल्सा उसके अंदर वो पर्टिकुलर थेरापेटिक इफेक्ट आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो लास्ट में जाने से पहले कि स्टार्टिंग में ही देख ले कि जो रॉ मटेरियल तुम लोग यूज करे हो, जो एक्सट्रैक्ट तुम लोग यूज करे हो वो इफेक्टिव है या नहीं। तो डेफिनेटली सबसे पहले प्लांट के मतलब कफ सिरप में जनरली क्या होता है, यूर थ्रोट इज इन्फेक्टेड विद द बैक्टीरियल और फंगस, मोस्ट प्रोबेबली इट इज अ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। तो इसके हिसाब से हम लोग उस पर्टिकुलर एनिमल को वी आर स्पाइक समथिंग, सो इट विल बी थ्रोट इज गेट इंजेक्टेड। ठीक है, सॉरी थ्रोट गेट इन्फेक्टेड, देन वी विल एक वॉट एवर अलग से अडुल्सा का सिरप, जो भी अडुल्सा का एक्सट्रैक्ट रहेगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट उस प्लांट हम लोग उस एनिमल को देंगे। उसके बाद वी विल कंटिन्यूसली ऑब्जर्व देयर थ्रोट की कंडीशन रिकवर हो रहा है या नहीं। ठीक है, सो अगर वो रिकवर हो रहा है मतलब क्या कि वो अडुल्सा का जो भी एक्सट्रैक्ट हम लोग यूज करें, इट इज एक्चुअली मतलब ट्रीटिंग द इन्फेक्टेड थ्रोट, सेम वे वी स्टडी फॉर द अदर 3 प्लांट। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग को क्या पता चलेगी, ये दिस पर्टिकुलर प्लांट एक्सट्रैक्ट इज एग्जैक्टली यूजफुल फॉर द ट्रीटिंग द कफ and cough syrup. That is nothing but the testing of the efficacy testing of this particular plant material with the help of the animal. मतलब सच में ये plant effective हो रहा है, so हम लोग ये particular plant extract को further preparation and product preparation के लिए ले सकते हैं। Okay, next that is very very important, that is a safety testing. I hope मैंने इसका कलर थोड़ा सा ग्रे रखा है, पर you can readable the color, right? You can read the acute toxicity and subacute toxicity, right?
मैंने जानबूझ के उसको लिखा है बिकॉज इट्स जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली एक्यूट टॉक्सिसिटी होता क्या है एंड सब एक्यूट टॉक्सिसिटी होता क्या है, बिकॉज यू आर नॉट येट कंप्लीटेड द टॉक्सिसिटी वाला टॉपिक. You already have the toxicity studies in your syllabus, but I hope it is not yet completed. So just understand, मैंने वो definition वहाँ पे रखे हैं. So let's see. सेफ्टी टेस्टिंग में जनरली हम लोग क्या करते हैं, acute and subacute toxicity of the plant species of interested and contaminate and adulterant adder. मतलब जो कुछ भी प्लांट तुम लोग यूज कर रहे हो वो डेफिनेटली वो प्लांट है जो क्या उसका थेरापेटिक इफेक्ट है, मतलब कि वो प्लांट कफ सिरप के ऊपर यूज हो रहा है, दैट इज ट्रू. लेकिन उस प्लांट के अंदर ओनली एक ही फाइटोकेमिकल नहीं है जो कफ सिरप के लिए यूज हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम दिस प्लांट देयर आर लॉट्स ऑफ फाइटोकेमिकल. क्या वो फाइटोकेमिकल्स तुम्हारे बॉडी के लिए सेफ है, कितना कॉन्सेंट्रेशन लेने के लिए वो सेफ है. ऐसा ना हो कि वहां पे, जैसे कि सिंपल अगर एग्जांपल लेना है अपार्ट फ्रॉम कडुलिंब. कडुलिंबा का जो प्लांट होता है या फिर उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है, इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल, हैविंग द एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, देन एंटी इलनेस जो हम लोग बोलते हैं, उसको क्या टर्म है अभी मुझे रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, कि मोस्ट प्रोबेबली फीवर को अगर तुम लोग को कम करना है तो भी तुम लोग कडुलिंब का सिरप, बिकॉज इट इज अ कोल्ड होता है, वो बॉडी में से तुम लोग का टेम्परेचर रिड्यूस करता है एंड दे हैव लॉट्स ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो इसलिए जनरली क्या करते हैं लोग, कडुलिंब का एक्सट्रैक्ट पीते हैं मॉर्निंग में. मैक्सिमम लोग जो जॉगिंग के लिए वगैरह जाते हैं वो एम्प्टी स्टमक लेते हैं, लेकिन कितने लिमिट में लेना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तुम लोग ने पूरा एक ग्लास लेते हैं और उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, 5 ग्राम लिंक्स इन वन वन ग्लास ऑफ वाटर और 10 ग्राम, बिकॉज हायर कॉन्सेंट्रेशन अगर वो प्लांट का लेते हैं सो इट मे बी डेडली इफेक्ट ऑन योर बॉडी, कि तुम लोग की डेथ भी हो सकती है. तो एग्जैक्टली वो प्लांट अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो एग्जैक्टली कितना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, उसका डेली डोसेज क्या होना चाहिए उस प्लांट के अंदर. अपार्ट फ्रॉम कुछ ऐसे कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस तो नहीं है, टॉक्सिन्स तो प्रेजेंट नहीं है. जैसे कि और एक प्लांट है जिसको मराठी में गुंज कहते हैं, गुंजाचा पाला ऐसे बोलते हैं, विच इज ऑल्सो यूजफुल फॉर कफ सिरप. ठीक है, लेकिन अगर उस प्लांट के तुम लोग फ्रूट्स लेते हो सो इट इज अ हाईली डेडली इफेक्ट, मतलब सिंपल इट इज हैविंग द सम अमाउंट ऑफ अ टॉक्सिन सब्सटेंस इन देयर फ्रूट्स. ठीक है, लीव्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन fruits are very very toxic, कि it is directly giving the deadly effect or lethal effect on your body. So सबसे पहले जो भी प्लांट तुम लोग यूज कर रहे हो क्या वो तुम्हारे बॉडी के लिए सेफ है, कितना डोजेस लेना सेफ है, इसका स्टडी करना भी बहुत जरूरी है. वो हम लोग किसमें करते हैं, एक्यूट एंड सब एक्यूट टॉक्सिसिटी ऑफ द प्लांट का. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम अगर प्लांट में कुछ कंटेमिनेट, जैसे मैम ने मतलब धनश्री ने बोला कि हेवी मेटल्स है, नॉट ओनली हेवी मेटल्स, एफ्लाटॉक्सिन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी तुम लोग के प्लांट्स मटेरियल हर्बल मटेरियल होता है वो कंप्लीटली ड्राई नहीं होते. सो मेजरली उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होता है कि दे प्रिकेयर द मॉइस्चर कंटेमिनेशन उसमें होता है. बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर लॉट्स ऑफ फंगस प्लांट के ऊपर ग्रो होता है जो इजीली देख के समटाइम्स पता नहीं चलता है. डेफिनेटली माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में इजीली पता चलता है फंगस है, लेकिन ऐसे ही अगर तुम लोग प्लांट ले रहे हो एंड उसका एक्सट्रैक्ट करो. कंपनी में कमर्शियल प्रोडक्शन में क्या होता है कि एवरी टाइम दे आर नॉट चेकिंग द माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, हम लोग ने स्टार्टिंग में सर्वे किया कि हम लोग ने इमेजिन करो कि कोई कंपनी है जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, तो स्टार्टिंग में हम लोग ने उसे रॉ मटेरियल कलेक्ट किया, उसका प्रॉपरली ऑथेंटिकेशन करने के बाद पता चला ये कंपनी से डेली बेसिस पे जो प्रोडक्ट आ रहा है वो ऑथेंटिक है. 1 महीना तुम लोग करोगे, लेकिन 1 महीने के बाद तुम लोग को पता चलता है कि ये कंपनी प्रॉपरली प्रोडक्ट भेजते हैं, तो 1 महीने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मैक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन करना डन करते हैं. वी आर डन जस्ट टीएलसी. ठीक है, सिंपल प्रोडक्ट है, जस्ट टीएलसी देखते हैं, ये बैंड दिख रहे हैं, मतलब यस डेफिनेटली सेम रॉ मटेरियल हम लोग को मिला है. तो एवरी टाइम वी आर नॉट चेकिंग द मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, जैसे बिकॉज डेली बेसिस पे प्रोडक्शन करना है उतना टाइम भी नहीं रहता है, हम लोग के पास उतना टाइम भी नहीं रहता है. तो इमेजिन करो ये टाइम पे 10 बैच के बाद 11th वाला बैच चल रहा है, तुम लोग ने उसके टीएलसी किया, टीएलसी परफॉर्म करने के बाद तुम लोग को सेम बैंड मिले और तुम लोग ने डायरेक्टली प्रोडक्ट यूज किया. लेकिन तब सीजन जो था, अभी जब तक तुम लोग के 10 बैच का प्रोडक्शन हो रहा था तब तुम लोग का विंटर सीजन था एंड समर सीजन था. 11th बैच के लिए तुम लोग का क्या बोल सकते हैं हम लोग, रेनी सीजन चालू हो गया. तो जो कुछ भी रॉ मटेरियल होता है प्लांट का, उसके अंदर रेनी सीजन में क्या होता है, मॉइस्चर के हिसाब से फंगस ग्रो होता है एंड फंगस के अंदर द जो फाइटोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है दैट इज द एफ्लोटॉक्सिन विच इज अ वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी.
जी। तो अभी प्लांट यूज किया, एक्सट्रैक्ट यूज किया, प्रिपरेशन किया, उसके बाद लास्ट में ऐसे पता चले कि इट इज हैविंग शोविंग सम मतलब क्लिनिक या जब मार्केट में गया तो कुछ डेडली इफेक्ट आ रहा है, फिर कुछ लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। उसके बाद तो अगर तुम लोग ने उसका फिर से स्टडी किया तो पता चला कि सैंपल के अंदर एफ्लोटॉक्सिन प्रेजेंट है विच इज अ हाईली टॉक्सिक। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी होता है कि अगर अभी ये क्या हुआ, इट इज नथिंग बट द अडल्ट्रेंट इन योर सैंपल विच इज वेरी हार्मफुल। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो व्हाट इज एग्जैक्टली एक्यूट टॉक्सिसिटी? इट इज रिफर टू द दोज एडवर्स इफेक्ट occurring following the oral or dermal administration of the single dose of the substance or multiple dose given within the 24 hours or inhalation of expose for the 4 hours। मतलब अगर इमेजिन करो कि तुम लोग एक्यूट टॉक्सिसिटी चेक कर रहे हो तुम्हारे प्लांट का, तो उसके अंदर जनरली क्या होगा, तुम लोग एक प्लांट मतलब एनिमल के ऊपर कर रहे हो तो तुम लोग पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डोज डिस्चार्ज करोगे, जैसे कि 10 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर डिजोल्व इन 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, कीप इट फॉर रोटरी शेकर फॉर द एक्सट्रैक्शन 24 आवर्स। ठीक है, उसके बाद जो भी एक्सट्रैक्ट मिल रहा है उसमें से तुम लोग इमेजिन करो फर्स्ट डे पे तुम लोग ने 1 ml उस पर्टिकुलर एनिमल को दिया। ठीक है, उसके बॉडी के अंदर कुछ भी टॉक्सिक या फिर एडवर्स इफेक्ट नहीं दिखे। कैसे पता चलेगा? उसका बॉडी का नॉर्मल बिहेवियर एंड ब्लड टेस्ट, जो भी उसके ब्लड टेस्ट रहेंगे उसे तुम लोग को पता चलेगा कि ब्लड के अंदर कुछ भी नॉर्मल इफेक्ट, उसके अंदर कुछ भी इफेक्ट्स नहीं आ रहे। उसके बाद नेक्स्ट डे पे यू आर डिवाइडेड टू 2 डोज 1 ml एंड 2 मतलब मॉर्निंग में 1 ml दिया, 24 आवर्स के लिए देना है ना, 12 आवर्स के बाद और 1 ml का डोज दिया। ठीक है, तो 2 डोज देने के बाद भी पता चला नॉर्मल है, कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद डोज बढ़ाया, ठीक है, 3 दिया। ठीक है, 1 ml मॉर्निंग में, उसके बाद 8 आवर्स का रखा। ठीक है, 24 आवर्स को मतलब टोटल 24 आवर्स में 3 ml का डोसेज गया, बॉडी में कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। मतलब क्या, 3 ml 24 आवर्स के लिए सेफ है। यू इंक्रीज द डोज, दैट इज अ 4 ml। 4 ml देने के बाद तुम्हें पता चला कि इट इज स्टार्ट समथिंग लाइक ओमिटिंग, ऐसा कुछ तो हो रहा है, या फिर द एनिमल इज डीजी और एनिमल इज मतलब नॉर्मल नहीं है, दे आर शोइंग सम इफेक्ट, और उसके वो स्टेबल नहीं है। जैसे 3 दिन के लिए जो भी स्टेबल था वो स्टेबिलिटी उसकी कुछ तो डिस्टर्ब हो रही है। मतलब क्या, उसके बॉडी के ऊपर कुछ तो कुछ ऐसा इफेक्ट हो रहा है जिसके वजह से उसका मेंटली, इट मे बी द मेंटली टॉर्चर। सो सम एडवर्स इफेक्ट इज हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर एनिमल के बॉडी में आफ्टर गिविंग द इंक्रीजिंग द 4 ml डोज। मतलब हम लोग ने क्या डिसाइड किया, मैक्स टू मैक्स दिन में 24 आवर्स में 3 ml तुम लोग दे सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोग ने उसका नेक्स्ट इनहेलेशन इज नथिंग बट द इनहेल दैट पर्टिकुलर एनिमल, ऐसे होता है। एंड ओरल रूट मतलब तुम लोग को बॉडी के अंदर देना। तो उसके हिसाब से तुम लोग का उसका एक्यूट टॉक्सिसिटी फाइंड आउट किया कि एक दिन में अगर तुम लोग 3 डोज लेते हो तो इट इज सेफ फॉर योर बॉडी एंड उसका इफेक्ट भी आता है। ठीक है, सब एक्यूट टॉक्सिसिटी एग्जैक्टली क्या होता है वो हम लोग को स्टडी करना है। Subacute toxicity is nothing but the studies are conducted to evaluate the new drug potential adverse effect following a treated period 2 to 4 weeks duration। एक दिन के लिए अगर तुम लोग ने 24 आवर्स के लिए स्टडी किया, दैट इज द एक्यूट टॉक्सिसिटी। ठीक है, 3 ml पर डे के लिए सेफ है, लेकिन कितने दिन तक लेना है वो भी इम्पोर्टेंट है। कंटिन्यूसली 2 महीने के लिए लेना है क्या? नहीं, बिकॉज जब तुम्हारे बॉडी में वो डिपॉजिट होता है, तुम लोग ने लास्ट ईयर में पीडीपी की सीखा है, फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोडायनामिक्स, यू आर ऑलरेडी नोन कि सम अमाउंट के बाद बॉडी में या फिर तुम्हारे किडनी में कुछ चीजें हैं जो कंप्लीटली इवेल्युएट ना होके, समटाइम्स इट इज रिमूव कंप्लीटली फ्रॉम योर बॉडी, but sometimes some chemicals, some toxins or some phytochemicals started deposited in your body and they are slowly reducing। ठीक है, तो 3 ml 3 टाइम्स डे ऐसे कंटिन्यूसली अगर तुम लोग एक पर्टिकुलर 2 to 3 वीक के लिए स्टडी करते हुए, एंड उसके बाद उसके बॉडी पे इफेक्ट देखना है उस पर्टिकुलर ड्रग का कि कुछ डिफेक्ट हो। अभी ये कहाँ पे चेक करोगे? नॉर्मल उसका बॉडी टेम्परेचर, मतलब इमेजिन करो कि हम लोग ने 3 वीक डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो 3 वीक के लिए एवरी डे के हिसाब से 8 आवर के बाद पर 1 ml हम लोग ने उसको एक्सट्रैक्ट दिए हैं एंड हम लोग ने स्टडी किया। तो आफ्टर 24 एवरी 24 आवर्स के बाद तुम लोग उस एनिमल का ब्लड चेक करोगे कि ब्लड के अंदर कुछ आ रहा है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम यू विल स्टडी द सेफ्टी, मतलब उसका हार्ट के ऊपर कुछ इफेक्ट हो रहा है, उसके बाद उसके किडनी के ऊपर कुछ इफेक्ट हो रहा है, उसके बॉडी के सर्कुलेशन पे कुछ इफेक्ट हो रहा है,
उसके वेट के ऊपर कुछ इफेक्ट हो रहा है, समटाइम्स वेट इंक्रीज भी हो सकता है हाईली सडनली, समटाइम्स सडनली वेट डिक्रीज भी हो सकता है, उसके सडनली डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ सकता है, सडनली डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो सकते हैं, ठीक है। एक दिन में ये पता नहीं चलता है, एक दिन में क्या पता चलता है कि भाई वो प्रोडक्ट सेफ है ही नहीं, लेकिन कंटिन्यूअसली 2-3 वीक के लिए तुम लोग अगर देते हो तो उसका स्लोली स्लोली बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट होता है ना, वो इफेक्ट होना स्टार्ट होता है। तो ऐसा ना हो कि कुछ कब ट्रीटमेंट के लिए हम लोग ने प्रोडक्ट बनाया है, लेकिन उसका एडवर्स इफेक्ट तुम्हारे किडनी पे या फिर तुम्हारे क्या बोल सकते हैं हार्ट पे हो, बिकॉज डेफिनेटली दीज आर द फाइटोकेमिकल्स आर नथिंग बट द chemicals which is actually in a organic form, so it may be higher concentration may affect your body, right? So हम लोग क्या करेंगे, 2 वीक के बाद या फिर ऐसे स्टडी करने के बाद 1 वीक के बाद उसका ब्लड चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग आफ्टर 1 वीक वी चेक द किडनी। किडनी का स्टडी कैसे करते हैं, ये तुम लोग को नेक्स्ट ईयर तुम्हारे प्रैक्टिकल स्टडीज में है कि एग्जैक्टली सम केमिकल टेस्ट होते हैं जो ब्लड से हम लोग करते हैं, जिससे पता चलता है कि किडनी के ऊपर कुछ इफेक्ट है, हार्ट के ऊपर कुछ इफेक्ट है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या नहीं, हार्ट बीट्स नॉर्मल है या नहीं, ये सारी चीजें, या फिर बॉडी के ऊपर कुछ पैचेस आ रहे हैं, कुछ रैशेस आ रहे हैं, ये सारी चीजें स्टडी करना, दैट इज नथिंग बट द एक्यूट सॉरी सब एक्यूट टॉक्सिसिटी। तो ये हम लोग कहाँ पे करते हैं, सेफ्टी टेस्टिंग, मतलब जो भी प्रोडक्ट तुम लोग प्रिपरेशन के लिए यूज करने वाले हो एक्स्ट्रा, ये अभी तक हम लोग सिर्फ रॉ मटेरियल का टेस्टिंग कर रहे हैं, जो भी रॉ मटेरियल वी आर यूजिंग फॉर योर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, उसका सेफ्टी टेस्टिंग हम लोग करें कि दिस ऑल द रॉ मटेरियल का जो भी एक्सट्रैक्ट तुम लोग ले रहे हो प्रिपरेशन के लिए, दीज आर सेफ और नॉट, दैट इज अ सेफ्टी टेस्टिंग ऑफ योर मटेरियल, ठीक है। Everybody is understood, whatever anybody is having any doubt you can raise your hand, otherwise we will move to the next slide, or just write in a chatted box that you don't have any doubts, we can move for the further, okay, ठीक है, so we will move for the next slide, ठीक है। Wait, the slide is not moving for the next slide, just a moment, okay, okay, so next test is a chemical testing, ठीक है, this is also very much important, or we can say it is little bit lengthy procedure, और मोस्ट ऑफ लोग क्वालिटी कंट्रोल में जो काम करते हैं उनके लिए समटाइम्स दे फील द केमिकल टेस्टिंग इज वेरी बोरिंग वर्क, बट समटाइम्स इट इज आल्सो इंटरेस्टिंग, सो व्हाट आर द केमिकल टेस्टिंग वी आर परफॉर्म, let's see. So general method to test the quality of raw materials like forage in organic matter, I will explain one by one. First of all I read all the tests, okay. So forage in organic matters, ash value, moisture content, extractive value are done and limits are determined for these parameters. The chromatographic fingerprinting pattern like HPTLC and HPLC are established to authenticate the species from the raw material, which have already we are checking in a authentication. So फिर से chemical testing में वो करने की जरूरत नहीं है. So let's see other chemical testing जो भी करते हैं वो क्या होता है. Forage in organic matter. What are the organic matter? Forage in organic matter. Forage in organic matter is nothing but the apart from your plant material, whatever extra organic matter present in your plant material, that is forage in organic matter. That means suppose you want to use adulsa leaves, because adulsa leaves having highly therapeutic index और efficacy for the cough के लिए use होता है, लेकिन अगर उसके अंदर लीव के साथ थोड़ा बहुत रूट का पार्ट आया है, स्टेम का पार्ट आया है, सो इट इज कंसिडर एज अ फॉरेज इन ऑर्गेनिक मैटर. आएगा नहीं ऐसा नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि तुम लोग 10 प्लांट कलेक्ट नहीं कर रहे हो कि बाबा यहाँ से 2 प्लांट 1 2 3 4 5 6 चलो 10 प्लांट हो रहे, ठीक है. जब कमर्शियल प्रोडक्शन होता है तो डेफिनेटली एवरीथिंग इज परफॉर्म विद द मशीनरीज, ठीक है. तो हार्वेस्टिंग भी अभी तुम लोग को पता है मशीनरी से होता है, तो ऐसा नहीं कि वो मशीन एक एक प्लांट चुन चुन के सेंटीमीटर से कट करने वाला है, तो थोड़ा बहुत तो उसके अंदर रूट वाला पार्ट बोलो, स्टेम वाला पार्ट बोलो, या फिर हवा से उड़ के आने वाला कुछ कचरा बोलो, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है एंड वो डेफिनेटली रहेगी, लेकिन वो पर्टिकुलर लिमिट में होना बहुत जरूरी है. एक पर्टिकुलर लिमिट उसका दिया हुआ होता है, जो हम लोग को कहाँ से पता चलेगा, हर्बल एंड आयुर्वेदिक फार्माकोपिया में, कि फॉरेजिन मैटर कंटेंट अगर है तो वो कितना परसेंट होना चाहिए, उस परसेंटेज से अगर वो लिमिट ज्यादा है तो डेफिनेटली वी विल रिजेक्ट द मटेरियल. सो दिस इज नथिंग बट द, मतलब अपार्ट फ्रॉम योर प्लांट मटेरियल जो भी एक्स्ट्रा उसके अंदर प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज अ फॉरेज इन ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है. तो अगर वो लिमिट से ज्यादा है तो यू विल कैंसिल द प्रोडक्ट, अगर वो विद इन द लिमिट है तो ओके. व्हाट इज द एश वैल्यू?
ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली ऐश वैल्यू, व्हाई वी परफॉर्मिंग द ऐश वैल्यू एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस. तो ऐश वैल्यू क्या होता है, जो भी ऐश वैल्यू इज वेरी मच इम्पोर्टेंट योर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, बिकॉज मैक्सिमम आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन और हर्बल फॉर्मुलेशन जो होते हैं, जो हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स के अंदर लीव्स लो या फिर रूट्स लो या फिर स्टेम्स लो कंटेन द हाई अमाउंट ऑफ फाइबरस मटेरियल. ठीक है. दिस फाइबरस मटेरियल इट इज नॉट इजीली डाइजेस्टेबल इन ह्यूमन बॉडी, राइट. जो भी तुम लोग के क्रूड फाइबर्स होते हैं प्लांट मटेरियल के अंदर, वो क्रूड फाइबर्स तुम्हारे बॉडी में इजीली डाइजेस्ट नहीं होते, सो इट इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी. तो ये ऐश वैल्यू में क्या होता है, जब भी कोई मटेरियल होता है, जब उसको तुम लोग हीट करते हो या फिर तुम लोग उसको बर्न करते हो, तो जो भी ऑर्गेनिक कंटेंट होता है वो बर्न होके कार्बन इवेपोरेट होके चला जाता है. एंड जो कुछ भी बर्न होने वाली चीजें नहीं होती है, इट इज converted into the ash, that is nothing but the inorganic content in your plant material. Generally plant material are the organic matter, some amount of inorganic material content. तो inorganic materials में generally क्या आते हैं, मेटल्स या फिर कुछ सॉइल कंटेंट रहेगा, सॉइल का कंटेमिनेशन रहेगा, मेटल्स जो हेवी मेटल्स, नॉट ओनली मेटल्स, हेवी मेटल्स, ओनली हेवी मेटल्स एंड मेटल्स अलग चीजें होते हैं. आई विल एक्सप्लेन बोथ द थिंग्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई सॉइल कंटेंट रहेगा, मेटल्स, हेवी मेटल्स या फिर अदर इनऑर्गेनिक कंटेंट जो भी प्लांट के अंदर शायद हो सकता है, दैट इज प्रेजेंट इन ऐश वैल्यू. तो ऐश करते कैसे, उसका प्रोसीजर क्या होता है एग्जैक्टली ऐश वैल्यू के लिए. जनरली जो भी तुम लोग का कंटेंट होता है, इमेजिन करो कि हम लोग ने अडुलसा की एग्जांपल लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सीधा अडुलसा पाउडर. ठीक है. तो अडुलसा पाउडर के लिए 2 ग्राम पाउडर लिया. ठीक है. तो तुम लोग क्रूसिबल लेते हो, क्रूसिबल के अंदर पाउडर को ऐड करते हो, उसके बाद उसको हीट करते हो. हीट करने के बाद तुम लोग उसको क्या बोलते हैं, तुम लोग का मशीन होता है जिसको अंदर हम लोग मोर देन 500 डिग्री टेम्परेचर पे हीट करते हैं, मफन हीटर. ठीक है. जिसके अंदर तुम लोग ऐश वैल्यू चेक करते हो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का. उसके अंदर 2 to 3 आवर्स के लिए मिनिमम 600 डिग्री टेम्परेचर पे तुम लोग रखते हो, कूल करते हो, जिसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंटेंट रहेगा वो रिमूव हो जाएगा. जो भी नीचे बचेगा पाउडर या फिर ग्रे या फिर व्हाइट कलर का, जिसको हम लोग ऐश बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट उस ऐश के अंदर तुम लोग के मेटल्स, हेवी मेटल्स एंड इनऑर्गेनिक कंटेंट होता है. तो वो ऐश वैल्यू का भी एक पर्टिकुलर लिमिट होता है. उस लिमिट से अगर ऐश वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब क्या, तुम्हारे प्रोडक्ट्स में क्रूड फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा है, which you have to, so before you are using the product you have to remove the crude powder. how to remove, उसके लिए तुम लोग को खुद का मेथड डेवलप करना पड़ेगा कि कैसे रिमूव करना है, क्या करना है, वो तुम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा. लेकिन अगर तुम लोग को सेम प्रोडक्ट के लिए सेम रॉ मटेरियल यूज करना है, उसके अंदर क्रूड फाइबर ज्यादा आ रहा है, ऐश वैल्यू ज्यादा आ रहा है, तो सबसे पहले तुम लोग को वो कहीं ना कहीं पे रिमूव करके फिर आगे कंटेंट करना है. नेक्स्ट कंटेंट है that is not okay. Ash value के अंदर there are different type of ash, that is nothing but the first is your complete ash, acid soluble ash, acid insoluble ash, water soluble ash, water insoluble ash and sulfuric acid ash. ऐसे उसके 5 टाइप होते हैं. एसिड सोल्यूबल एश, नॉर्मल एश क्या होता है, टोटल एश, दैट इज नथिंग बट जस्ट सैंपल को हीट करना है, मतलब सैंपल को लेना है, पहले हीट करोगे, उसके बाद उस मफन में 600 डिग्री पे डालोगे. ठीक है. नेक्स्ट जो होता है दैट इज नथिंग बट एसिड सोल्यूबल एंड एसिड इनसोल्यूबल. एसिड सोल्यूबल में क्या होता है, जो भी तुम लोग का ऐश आया है फर्स्ट, जो नॉर्मल ऐश है, उस ऐश के अंदर वी आर एडिंग 5 नॉर्मल HCl लेते हैं, 2 to 3 ml हम लोग ऐड करते हैं. मतलब क्या है, जो भी इनऑर्गेनिक कंटेंट प्रेजेंट है, उस इनऑर्गेनिक कंटेंट में अगर कोई एसिडिक सोल्यूबल वाला कंटेंट रहेगा, तो जैसे ही तुम लोग उसके अंदर एसिड डाल के उसको फिर से हीट करते हैं आधे घंटे के लिए, तो हीट करने के बाद जो भी एसिड में सोल्यूबल रहेगा, वो हीट करने के बाद एसिड के साथ रिमूव होता है, एंड एसिड इनसोल्यूबल कंटेंट रहेगा वो सेम ऐश में डिपोजिट होता है. तो टोटल ऐश जब तुम लोग ने किया, टोटल ऐश करने के बाद जो भी तुम लोग का इनऑर्गेनिक कंटेंट वहां पे ऐश मिला है, उस ऐश में तुम लोग एसिड ऐड करोगे, 5 नॉर्मल HCl, उसके बाद फिर से हीट करोगे, फिर से मफन में रखोगे, मफन में रखने के बाद 2 घंटे के बाद रिमूव करोगे एंड फिर से उसका वेट लोगे. सपोज इमेजिन करो टोटल ऐश है तुम लोग को 0.033 मिलीग्राम. ठीक है. उसके बाद एसिड सोल्यूबल ऐश है 0.26 मिलीग्राम. ठीक है. तो एसिड सोल्यूबल ऐश कितना था, ठीक है, 3 माइनस जो भी तुम लोग का ओरिजिनल ऐश है, एसिड सोल्यूबल ऐश माइनस करोगे तो तुम लोग को क्या मिलेगा, सोल्यूबल वाला ऐश, एंड जो भी तुम लोग का इनसोल्यूबल है उसका तुम लोग को डायरेक्टली वैल्यू मिलेगा. सेम वे यू कैन परफॉर्म द
वाटर सोल्यूबल एंड वाटर इनसोल्यूबल। जिसमें क्या करना है, ऐश के अंदर वाटर डालना है, वाटर डालने के बाद उसको नॉर्मल जो अपना फिल्टर पेपर होता है, फोर साइज वाला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आई फॉरगेट द नेम ऑफ द फिल्टर, जो फिल्टर पेपर हम लोग यूज करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, 41, ठीक है, 41 नंबर वाला फिल्टर पेपर। देन उसमें से फिल्टर करने के बाद जो भी वाटर सोल्यूबल ऐश रहेगा वो वाटर के साथ चला जाएगा, जो वाटर इनसोल्यूबल ऐश रहेगा वो पेपर को के साथ डिपॉजिट हो जाएगा पेपर को। उसके बाद वो क्या करना है, उस फिल्टर पेपर को अलोंग विद द इनसोल्यूबल ऐश उठाना है, फिर से सेम क्रूसिबल में रखना है एंड हीट करना है। हीट करने के बाद क्या होता है, पेपर में क्या होता है, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज क्या होता है, इट इज नथिंग बट द ऑर्गेनिक मैटर। तो हीट करने के बाद वो ऑर्गेनिक मैटर रिमूव होता है एंड जो भी इनसोल्यूबल वाटर इनसोल्यूबल वाला ऐश होता है वो ऐश उसके अंदर बचता है, जो हम लोग को हीट करने के बाद मिलता है। सो ये हो गया एसिड सोल्यूबल, एसिड इनसोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल। एंड नेक्स्ट इज योर H2SO4, दैट इज अ सल्फ्यूरिक एसिड ऐश। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सैंपल को हीट करने से पहले H2SO4 ऐड करके डाइजेस्ट करते हैं। मतलब 2 ग्राम ऑफ सैंपल फर्स्ट ऑफ ऑल डिसॉल्व इन 2 ml ऑफ H2SO4। तो जनरली एसिड में क्या होता है, एसिड H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड जो होता है उसके अंदर तुम लोग का ऑर्गेनिक मैटर जल जाता है। तो मतलब हीट करने से पहले हम लोग उसको रिमूव करते हैं एंड उसके बाद तुम लोग को उसको हीट करना है एंड मफन में 3 आवर्स के लिए रखना है। उसके बाद जो उसका ऐश मिलता है दैट इज नथिंग बट द सल्फ्यूरिक ऐश, ठीक है। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ ऐश जनरली आर यूजिंग। अभी तुम लोग को क्वेश्चन आया होगा कि इसका लिमिट कहाँ से मिलेगा, कि एग्जैक्टली ऐश कितना होना चाहिए एंड इसका एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या है, मतलब हाउ टू परफॉर्म द ऐश वैल्यू, मॉइस्चर कंटेंट, ये सारे प्रोसीजर तुम लोग को इंडियन फार्माकोपिया में मिलेगा। जैसे तुम लोग का हर्बल फार्माकोपिया में मिलेगा, जैसे तुम लोग को अपेंडिक्स होते हैं इंडियन फार्माकोपिया में, सेम वे हर्बल फार्माकोपिया में भी उसके अपेंडिक्स प्रेजेंट है, जिसके अंदर हर एक टेस्ट परफॉर्म कैसे करना है हर एक प्लांट के लिए। मतलब अगर लीव्स मटेरियल है या फिर रूट मटेरियल है या फिर उस प्लांट का एक्सट्रैक्ट तुम लोग यूज कर रहे हो या फिर उस प्लांट के अंदर तुम लोग उसका डिकॉक्शन यूज कर रहे हो, तो हर एक के लिए हर एक चीज का कितना वैल्यू होना चाहिए, उसका ऐश वैल्यू कितना होना चाहिए वगैरह, इसके लिमिट ऑलरेडी उस बुक में मेंशन किए होते हैं, जहां से हम लोग को वो रेफरेंस के लिए पता चलते हैं। सो ऐश वैल्यू क्या होता है सबको पता चला। एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट विथ रिस्पेक्ट टू द ऐश वैल्यू? See, these things are very, I am taking this is very slowly because these are very important। आगे जाके तुम लोग को जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट करना है, जो हम लोग का आयुर्वेद का प्रोडक्ट होता है, उसमें ये सारी चीजें तुम लोग को, बिकॉज यू हैव द प्रोडक्ट, दैट इज तुम लोग को जो रिसर्च प्रोजेक्ट इसके अंदर तुम लोग को तुम्हारा प्रोडक्ट प्रिपेयर करके, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करके, यू हैव टू स्टैंडर्डाइज द प्रोडक्ट। जो तुम लोग न्यू प्रोडक्ट प्रिपेयर करने वाले हो उसको तुम लोग को स्टैंडर्डाइज करके उसका प्रेजेंटेशन देना है। तो उसके लिए जस्ट वन सेकेंड, माय मोबाइल लैपटॉप चार्जिंग इज लेस। ओके ओके, ठीक है। So that's why I'm taking this particular in detail. So anybody is having any doubt for ash value? Okay, no doubts. I hope no doubts, right? Peoples, are you with me? Just write in chat box. Hello, ma'am. Yes, right. Okay, Ma'am, chalo. can you please repeat the water soluble wala procedure? Water soluble wala procedure. Okay, just 1 second. Huh? I will repeat it. One second. Okay. वाटर सोल्यूबल, ठीक है। वाटर सोल्यूबल में एग्जैक्टली होता क्या है, नॉर्मल ऐश तुम लोग परफॉर्म करोगे, कैसे परफॉर्म करोगे, नॉर्मल ऐश 2 ग्राम सैंपल लोगे, ठीक है, क्रूसिबल में। उसके बाद उसको हीट करोगे, पहले हीट करोगे,
हीट क्यों करते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो भी वेपर्स वाला मतलब ब्लैक कलर का जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है वो रिमूव हो जाए। जैसे ही तुम लोग हीट करने स्टार्ट करते हो उसके अंदर से ऑर्गेनिक मैटर रिमूव होता है। उसके बाद तुम लोग उसको मफिन फर्नेस में रखते हो, रखने के बाद 3 आवर्स के बाद रिमूव करते हो। रिमूव करने के बाद तुम लोग को जो ऐश मिलता है तुम लोग उसका पहले वेट लोगे कि एग्जैक्टली हाउ मच अमाउंट ऑफ ऐश इज प्रेजेंट। वो वेट लेने के बाद जो भी क्रूसिबल है उस क्रूसिबल में तुम लोग 5 ml नॉर्मल वाटर ऐड करो। वाटर ऐड करने के बाद तुम लोग उसको जो तुम लोग का ग्लास रॉड है उसे प्रॉपर्ली यूनिफॉर्मली मिक्स करोगे, तो जो भी ऐश के अंदर वाटर सोल्यूबल कंटेंट रहेगा वो सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तुम लोग जैसे फिल्ट्रेशन करते हो, फिल्ट्रेशन का अपना यूनिट होता है जिसके अंदर तुम लोग फिल्टर पेपर लेते हो। फिल्टर पेपर लेने के बाद जो भी तुम लोग का कंटेंट है वो फिल्टर पेपर से पास करते हो एंड कलेक्ट करते हो। ठीक है, सो फिल्टर पेपर रखोगे, जो तुम लोग का कोनिकल फ्लास्क होता है उसके अंदर फिल्टर पेपर के बाद तुम लोग सैंपल को फिल्टर करो। फिल्टर करने के बाद होगा क्या, जो भी वाटर सोल्यूबल कंटेंट है वो वाटर के साथ रिमूव हो जाएगा एंड वाटर इनसोल्यूबल कंटेंट जो रहेगा वो तुम्हारे फिल्टर पेपर पे एज अ फॉर्म ऑफ पीपीटी करके डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद तुम लोग को क्या करना है, जिस फिल्टर पेपर में तुम लोग ने फिल्टर किया है उस फिल्टर पेपर को तुम लोग को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। अलॉन्ग विद द फिल्टर पेपर, मतलब उस फिल्टर पेपर को वो कोनिकल फ्लास्क में से उठाना है एंड उस फिल्टर पेपर का छोटा सा पाउच बना के सेम क्रूसिबल में फिर से रखना है एंड यू हैव टू हीट, मतलब जो ऐश का प्रोसीजर था वो प्रोसीजर फिर से रिपीट करना है। उस क्रूसिबल को तुम लोग फिर से हीट करोगे, उसके बाद हीट करने के बाद फिर से मफिन फर्नेस में रखोगे। जब तुम लोग हीट करोगे या फिर मफिन फर्नेस में रखोगे तब क्या होगा, जो भी फिल्टर पेपर होता है विच इज कम्प्लीटली मेड विद द सेल्यूलोज, तो वो सेल्यूलोज होता है दैट इज नथिंग बट द 100% ऑर्गेनिक मैटर, तो वो हीट करने के बाद पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा एंड जो नीचे ऐश बचेगा उस ऐश में क्या रहेगा, जो फिल्टर पेपर पे डिपॉजिट हुआ वाटर इनसोल्यूबल वाला ऐश था वो उस क्रूसिबल में रहेगा, जो तुम लोग फिर से वेट करोगे। ठीक है, तो मैंने बोला कि स्टार्टिंग वाला जब वेट लोगे, इमेजिन करो कि स्टार्टिंग वाला वेट में तुम लोग को ऐश मिला है 0.5 ग्राम। ठीक है, अभी इमेजिन करो कि वाटर सोल्यूबल करने के बाद तुम लोग ने जो ऐश का वैल्यू लिया उसका वेट तुम लोग को मिला है 0.3 ग्राम। मतलब तुम्हारे सैंपल में टोटल ऐश में वाटर सोल्यूबल ऐश कितना था, 0.2 ग्राम, जो वाटर के साथ रिमूव हो गया। वाटर इनसोल्यूबल ऐश कौन सा था, जो अभी तुम लोग ने वेट लिया है, दैट इज 0.3 ग्राम एंड टोटल ऐश कितना था, 0.5 ग्राम। ठीक है, so that is nothing but the same procedure we are follow for the acid soluble and acid insoluble। लेकिन एसिड के अंदर वाटर की जगह पे तुम लोग क्या करते हो, 5 नॉर्मल HCl डालते हो एंड वाटर के लिए नॉर्मल वेट वाटर डालते हो। सो अभी क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Thank you. Oh, so can we move for the next point? ठीक है, चलो। Yes, ma'am. Okay. So next is the moisture content. Moisture content is also called as the LOD, that is the loss on drying. ठीक है, see LOD and moisture content के दो types होते हैं। First that is we are checking with the LOD and next we are checking with your Karl Fisher. These are the two methods which we are using for the checking the moisture content. First वाला जो है that is your, I think it's 11:30, right? 11:30 you have the next lecture, right? Guys, I think we should stop here because it's almost 11:25. Gitanjali ma'am is taking the lecture around 11:30. So the meeting may not be end after the 45 minutes. So better moisture content I will start in this next lecture because it is also taking 10 to 15 minutes to explain the moisture content, and 11:30 you have the next lecture. So better we will stop here and we will continue tomorrow for the next lecture. Okay? Apart from this, anybody is having any doubt with respect to the same? Please write in chat box if you don't have the doubt. No doubts, ma'am. So I can stop here. Okay, okay. So thank you so much for the listening. Okay, we will meet tomorrow for the same time. Okay, I will send the invitation. Chalo, bye. Take care.